Assalamu alaikum everyone. My name is Nabil and I am going to teach you chemistry. This is the book of chemistry that we are going to study of class 10 book foundation की as per Federal Textbook Board, Islamabad. So let's start with I'm not going to start with the first chapter. Firstly, I am going to deal with the middle one chapters और इनके concepts basically बहुत easy हैं. Exercise lengthy है लेकिन ये कि easy concepts हैं, so आप easily इनको समझ सकते हैं if you can focus on the lectures and you are going to practice it out and daily आप learn करेंगे तो it will be very easy for you. So we are going to start with the unit number 10, that is hydroxy compounds. So let's start with unit number 10, that is hydroxy compounds. So let's start. Firstly, we are going to read its SLOs. What are the SLOs? SLOs means the students learning outcomes. These are known as SLOs. यानी बेसिकली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन SLOs को डिस्कस कर लेते हैं और जो मैंने अंडरलाइन आपको करवाया हुआ है वही आप अंडरलाइन कीजिएगा कि इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. फुल अंडरलाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है. पहला बेसिकली आपके पास क्या है कि मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल आप पढ़ेंगे एंड फर्मेंटेशन ऑफ aqueous glucose at 25 to 35 degrees centigrade in the presence of yeast and in the absence of oxygen. क्या पढ़ेंगे. Then catalytic addition of steam to ethene at 300 and 600 kilopascal per 6 atm in the presence. ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो आपने करना है. नेक्स्ट आगे भी एक कंपैरिजन है आपके पास, कंपैरिजन ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू मेथड्स. सो नेक्स्ट वन इज कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स. देन applications of alcohols as fuel, role of alcohols as pharmaceuticals, cosmetics and fuel production, and the last one is impact of alcohols on daily life. So these are all the SLOs that we are going to learn and understand in this unit, that is of hydroxy compounds. So basically let's start with our chapter, and I will be providing you the full marking of the unit, so you have to mark it on side by side. I have written all the related informations, all the questions that are necessary, and I have written it on the book page, so you can also notice that, and you can also mention it on your books as well. So let's start with our main topic. Firstly, you can mention the question what are alcohols. Also give examples of simple and complex alcohol. First paragraph पे ये question mention कर लें. Now I'm going to read it. An alcohol is an organic compound in chemistry that contains at least one hydroxy functional group attached to a saturated carbon atom. Underline the line. The class of organic compound which have a hydroxyl functional group attached to a hydrocarbon chain are called alcohols. There are many different types of alcohols ranging from simple alcohol, for example methanol CH3OH and ethanol CH3CH2OH, and to complex alcohols like sugar, cholesterols, etc. So in the first paragraph they are saying कि अल्कोहल बेसिकली आपके पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली, और इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ जॉइन हुआ होता है. यानी सिंपल मैं आपको एक अल्फाज में बोलूँ कि आपके पास जैसे सिंपली कि आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH अटैच है, तो वो आपके पास एक अल्कोहल बन जाएगा. यानी सिंपल वर्ड में कि इधर मेंशन हुआ है दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप अटैच टू अ सैचुरेटेड कार्बन एटम. तो सिंपली एक सैचुरेटेड कार्बन एटम की चेन में अगर बनाऊं तो इसमें सिंपली मैं यहाँ इधर ही बना रहा हूँ, आप इधर ही देख सकते हैं कार्बन की मैं 3 कार्बन की चेन बना रहा हूँ. ठीक है, इधर हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, इधर हाइड्रोजन अटैच करता हूँ, इधर हाइड्रोजन अटैच करता हूँ. अब हियर यहाँ पे मैं अगर H एटम को अटैच कर दूँ और इधर अटैच कर दूँ, इधर भी अटैच कर दूँ हाइड्रोजन एटम को, और अगर इधर मैं अटैच कर दूँ एक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड को OH को, तो ये आपके पास पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये एक आपके पास अल्कोहल बन जाएगा. क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. दिस विल बी नोन एज अल्कोहल. यानी बेसिकली सैचुरेटेड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो. सैचुरेटेड मीन्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, तो यानी वो कार्बन की चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा और उसके अंदर बेसिकली आपके पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा. सो दैट इज़ नोन एज दैट इज़ नोन एज अल्कोहल्स. आपके पास ये क्या होते हैं, सारे अल्कोहल होते हैं. फर्दर ये इसकी डेफिनेशन मेंशन हुई भी है किसकी, अल्कोहल की. दैट इज़ रिटन ओवर हियर, दैट इज़ द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव अ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन आर कॉल्ड अल्कोहल्स. सिंपली कार्बन आइटम के साथ आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होकर OH जब लग जाता है तो आपके पास वो एक अल्कोहल कहलाता है. अगर मैं एक और एग्जांपल भी यहाँ मेंशन कर दूँ ऑफ वन कार्बन की तो नहीं होती, सिंपली मैं अगर 5 कार्बन चेन यहाँ पे बना दूँ, 1 2 3 4, चलिए 4 कार्बन चेन बनाते हैं. ठीक है, 4 कार्बन चेन विल बी इनफ. सो आई थिंक मैं इधर हाइड्रोजन अटैच कर दूँ साइड्स पे. ठीक है, यहाँ मैं हाइड्रोजन अटैच कर ही देता हूँ. ठीक है,
ये मैंने हाइड्रोजन साइड पर अटैच कर दिए। अब इधर भी वैलेंसी है इनकी चारों की, ऊपर भी वैलेंसीज हैं क्योंकि ईच कार्बन आइटम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सब पे मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूँ और कहीं पे मैं बेसिकली क्या करूँ कि एक हाइड्रोकार्बन चेन में मैं कहीं बीच में OH को ऐड कर दूँ, OH को मैं ऐड कर दूँ सिंपली। तो वो आपके पास इधर भी H और इधर भी H, सिंपली OH को जहाँ मैं ऐड कर दूँ विद इन अ कार्बन चेन, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एक अल्कोहल कहलाता है। दिस इज़ नोन एज अल्कोहल। ठीक है, यही मेंशन हुआ है इधर। पर फर्दर इसकी मेंशन ये हुआ है कि यहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। ये सिंपल से कम्प्लेक्स में आपके पास फ्रॉम सिंपल अल्कोहल टू कम्प्लेक्स अल्कोहल आपके पास यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस आ जाते हैं इस चीज़ के कि बेसिकली कि सिंपल अल्कोहल से कम्प्लेक्स अल्कोहल में आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, सो नाउ यहाँ मेंशन हुआ हुआ है फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, ये सिंपल अल्कोहल है आपके पास, मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मीथेनॉल CH3OH एंड इथेनॉल CH3CH2OH। ये बेसिकली आपके पास सिंपल अल्कोहल है और जो कम्प्लेक्स होते हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में जिनका नहीं बन सकता, बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स और अल्कोहल्स होते हैं, वो कौन से हैं आपके पास, एक नंबर 1 शुगर है और नंबर 2 आपके पास कोलेस्ट्रॉल्स हैं। ठीक है, इफ़ अगर आपने बनाना है मिथेनॉल का स्ट्रक्चर तो मेथ मीन्स 1 कार्बन आइटम एंड हैविंग मीन्स हाइड्रोजन की जगह पे आप OH ज्वाइन कर दोगे। तो मैं यहाँ पे मिथेनॉल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, आप भी चाहें तो यू कैन इवन ड्रॉ इट ऑन योर बुक्स एज वेल। एज इफ़ यू ऑल नो कि इस बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो सकता है, बट स्टिल एज यू हैव गोन थ्रू ऑफ 9th क्लास तो आपने उसमें भी डिटेल में पढ़ा है। मिथेनॉल बेसिकली हैविंग 1 कार्बन आइटम, यानी इसमें सिर्फ एक कार्बन आइटम होता है। और अब इसकी जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तब इसमें क्या होगा, ये बीच में एक कार्बन आइटम मौजूद है आपके पास। ठीक है, 1 कार्बन आइटम, अब इसमें एक चारों पे आपके पास हाइड्रोजन आइटम अटैच हो जाएंगे। ठीक है, चारों पे आपके हाइड्रोजन आइटम अटैच हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर मीथेन का स्ट्रक्चर है, नॉट मिथेनॉल। ये किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सफिक्स OL यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि हमें पता है कि यहाँ पे अल्कोहल हमने बनाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे H को रिमूव करके ये वाला H को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम OH को लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। और इसमें क्योंकि एक कार्बन आइटम है, 1 कार्बन आइटम है, तो इसलिए हमने ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या कहलाएगा, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, सो यू कैन इवन ड्रॉ इट ऑन योर बुक्स कि आपको आइडिया हो जाए कि मिथेनॉल का स्ट्रक्चर इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऐसे मेंशन किया हुआ है जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। और यही मेंशन है उधर CH3OH, यानी कार्बन 3 हाइड्रोजन आइटम है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आइटम्स अटैच हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच है और एक साइड पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये उसका कंडेंस फार्मूला है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड कर गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इथेनॉल का भी स्ट्रक्चर सेम है। इथेनॉल में बेसिकली आपके पास क्या होता है, इथेनॉल बेसिकली हैविंग 2 कार्बन आइटम इज़ नोन एज इथेनॉल। और इथेन का स्ट्रक्चर में हम बेसिकली H को रिमूव करके OH को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट विल बी इथेनॉल। मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब इथेनॉल में आपके पास क्या होता है, बेसिकली जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स की चेन मौजूद होती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज इथेनॉल। सो अब यहाँ पे हम इथेनॉल का बेसिकली मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट ऑन योर बुक्स। इथेनॉल में बेसिकली 2 कार्बन आइटम होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे पहले 2 कार्बन आइटम सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होगी, यू मस्ट नो। ठीक है, इनके सारे साइड्स पे पहले मतलब हमने सिंपली बनाना ही क्या है, हमने बनाना है वी हैव टू ड्रॉ, हमने बनाना ही ईथेन है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ ईथेन। ईथेन में बेसिकली चारों साइड्स पे हमने हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, मतलब 6 साइड्स पे हमने हाइड्रोजन को अटैच करना है। ठीक है, हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ये किसका स्ट्रक्चर है, ईथेन का स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि हमने अल्कोहल बनाना है तो इस ईथेन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को हम रिमूव करके क्या अटैच कर देंगे, बेसिकली OH ग्रुप अटैच कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। और ये अल्कोहल ग्रुप इसकी नेमिंग क्या होगी, ये एक इथेनॉल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आइटम्स हैं और इन 2 कार्बन आइटम्स में बेसिकली 2 कार्बन आइटम्स तो ये मौजूद है और इन 2 कार्बन आइटम में आपके पास इस पूरी कार्बन चेन में एक OH जॉइन है, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन चुका है। सो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल ऑन योर बुक्स। सो और यही इसका कंडेंस फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो कंडेंस फार्मूला भी इसका यही होगा, आई एम राइटिंग अबव हेयर ऊपर कि ये सिंपली इसको आप एक साइड पे लिखोगे CH3 और इसको आप लिखोगे CH2। ठीक है, और ये OH आखिर में अलहदा लिखा जाएगा, मतलब सिंपली जैसे वहाँ आपकी बुक में मेंशन है वैसे ही आपने मेंशन करना होगा। आई एम राइटिंग ओवर हेयर CH3 CH2 और फिर आखिर में OH आपने लिखना है। सिंपली ये आपके पास किसका है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। किसका, इथेनॉल का, ये आपके पास कंडेंस फार्मूला है। ठीक है, तो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर भी आपके पास कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ये आपके पास कौन से थे, ये आपके पास सिंपल अल्कोहल थे, ये सारे आपके थे सिंपल
अल्कोहल, ये आपके सिंपल अल्कोहल थे, ठीक है। ये आपके कौन से थे? सिंपल थे, ये सिंपल अल्कोहल थे आपके। दीज वन आर योर सिंपल अल्कोहल, ठीक है। ये आपके थे कौन से? सिंपल अल्कोहल थे। सो नाउ नेक्स्ट अब आपके कौन से हैं? कम्प्लेक्स अल्कोहल्स। कम्प्लेक्स अल्कोहल्स में आपके पास सिंपली कौन सा है? दिस वन, पहला है शुगर और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपके कौन से हैं? पहला है शुगर, फर्स्ट वन इज़ शुगर एंड सेकेंड वन इज़ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। पहला शुगर है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल है आपके पास। ये कौन से हैं? ये आपके कम्प्लेक्स वन है। कौन से हैं? COMPLEX, कम्प्लेक्स अल्कोहल्स हैं ये आपके, ठीक है। सो दिस वन इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ। अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। So mention down the question over here that it is written that how ethanol can be manufactured commercially, explain with reaction। और ये पूरा आपके पास, क्योंकि इसके दो मेथड हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड है, तो कैसे हम इसको कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं इथेनॉल को, मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल ही आपके पास हेडिंग है ना, तो इसलिए इसमें ये दोनों मेथड्स आपके पास फुली इंक्लूड होंगे, फुली इसमें आपके पास दोनों मेथड्स इंक्लूडेड हैं। और सेकेंडली अब फर्स्ट हेडिंग पे अब आप क्वेश्चन बना लें। फर्स्ट हेडिंग पे ये पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे, पहला क्वेश्चन था ये, फिर दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका यहाँ से एंड तक, ये आपका LQ वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस वन यहाँ तक जो आपका था वो लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको ये 2 ये वाला बुक वाला ये अपने से जो लिखा है वो मार्क करना था। अब जो फर्स्ट वन है इस पर अब आपने क्वेश्चन लिखना है, जो फर्स्ट हेडिंग है इस पर अब आपने 3 थर्ड क्वेश्चन मेंशन करना है, ठीक है। सो लेट्स मेंशन द क्वेश्चन ऑन ए, मेंशन कर लें क्वेश्चन जल्दी से। इट इज़ रिटन हाउ इथेनॉल can be manufactured by fermentation also give reaction। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड पे। ये 2 मेथड्स हैं इसके, ये दोनों मेथड्स को ही आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल में पहला है कि कैसे हम इथेनॉल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू। हमने इसमें इसका रिएक्शन भी लिखना है। मैं आपको बता दूं, आप पूरी ये थ्योरी लिख लें, अगर इसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, अगर आप इसमें ये वाला रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो मेन बात इसमें किस चीज़ के लिए है? रिएक्शन ही आपने देना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं आपको पहले रीड कर देता हूँ, इसमें सारी मार्किंग हुई हुई है, तो आप इसको अंडरलाइन भी साथ साथ करते जाएंगे जो मैंने मार्क किया है इसके अंदर, ठीक है। व्हेन एक्वस ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद यीस्ट एंड लेफ्ट फॉर सेवरल डेज एट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट cover the glucose into ethanol and carbon dioxide। This process is called fermentation। ये इसका रिएक्शन है। क्या है कि C6H12O6 ये एक्वस ग्लूकोज है और फिर इथेनॉल एक्वस में है और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी ग्लूकोज ब्रेक होगा किसमें? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फर्स्टली इसको समझ लें जल्दी से ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जो एक्वस ग्लूकोज है आपके पास, एक्वस ग्लूकोज, अब एक्वस किसे कहते हैं? एक्वस बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। एक्वस इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली ये क्या है? एक टाइप क्या है किसकी? सोल्यूशन की। ये एक टाइप है किसकी? सोल्यूशन की एक टाइप है एक्वस सोल्यूशन। ये किसकी टाइप है? सोल्यूशन की ही एक टाइप है। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। वाटर एज सॉल्वेंट यूज्ड, कि सॉल्वेंट के तौर पे आप वाटर को यूज़ करते हो, यानी इसके अंदर मेजर क्वांटिटी सॉल्वेंट और सोल्यूट किसे कहते हैं? कि सॉल्वेंट जिसके अंदर आपके पास मेजर जो आपके पास क्वांटिटी होती है, मेजर क्वांटिटी वो किसकी है? वाटर की है। तो वाटर की जिसमें मेजर क्वांटिटी हो, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, जिसमें वाटर बेसिकली एक सॉल्वेंट हो और उसके अंदर एक सोल्यूट मिक्स हो, तो वो क्या चीज़ कहलाता है? एक एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। दैट इज़ नोन एज एक्वस, AQUEOUS एक्वस सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सो यही आपके पास इसमें था। तो लेट्स डिस्कस ओवर हियर दैट इज मेंशन कि व्हेन एक्वस ग्लूकोज इज मिक्सड विद यीस्ट, कि जो एक्वस ग्लूकोज है उसको हम यीस्ट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। यीस्ट बेसिकली खमीरा, जो हम खमीर एक आटा कहते हैं ना, खमीरा आटा, वैसे ही सिंपली एक यीस्ट एक खमीरी एक चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक्वस ग्लूकोज को हम मिक्स करते हैं यीस्ट के साथ और उसको कुछ ज़्यादा दिनों के लिए, सेवरल यानी मैनी, सेवरल का मीनिंग मेंशन कर लें। यहाँ पे मैं जो आपको मेंशन करवाऊँ वो भी आपने करना है स्क्रीन पे। सेवरल का मतलब होता है मैनी, कि काफ़ी दिनों के लिए बेसिकली, ठीक है। सेवरल मीन्स मैनी, कि काफ़ी दिनों के लिए आपके पास बेसिकली 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड में छोड़ा जाए बहुत दिनों के लिए एक्वस ग्लूकोज को। जब हम एक्वस ग्लूकोज को यीस्ट में मिक्स करेंगे और उसको बहुत दिनों के लिए छोड़ देंगे, किस टेम्परेचर पे? 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड में। एब्सेंस यानी उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी, नो ऑक्सीजन इज़ इन्वॉल्व, नो ऑक्सीजन। क्या कह रहा हूँ कि जो एक्वस ग्लूकोज हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे एब्सेंस का मतलब क्या होता है कि नॉट इन्वॉल्व, यानी उसकी प्रेजेंस नहीं है। एब्सेंस यानी नॉट इन्वॉल्व, यानी ऑक्सीजन क्या है? इन्वॉल्व नहीं है,
क्या है, नॉट इन्वॉल्व, कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं है, नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी लिख सकते हैं कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी ऑब्वियसली कुछ पार्ट नहीं दे रहा, ठीक है। जब एक्वस ग्लूकोज को हम क्या करें, यीस्ट के अंदर मिक्स कर दें और उसको काफ़ी दिनों के लिए छोड़ दें 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ऑक्सीजन भी ना हो, तो फिर क्या होता है कि एंजाइम प्रेजेंट एट द यीस्ट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यीस्ट के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को किस में, इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ग्लूकोज सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। और यही प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी ग्लूकोज को सिंपली, जो मैं बोलूँ कि ग्लूकोज को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, बेसिकली जो एंजाइम यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर्म लिखी हुई है ग्लूकोज की, जिसमें क्या है C6H12O6 एक्वस ग्लूकोज आपके पास है, और इस क्योंकि हमने ग्लूकोज में यीस्ट को क्या किया था, मिक्स किया था, आप ऊपर यीस्ट लिख भी सकते हैं, तो उससे क्या बना था, इथेनॉल बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। 10 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर ऑफ ये अल्कोहल का हम फर्स्ट वन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन। सो इसमें बेसिकली आपके पास क्या है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज़ योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का ये आपका मॉलिक्यूल है C6H12O6। जब ये यीस्ट के साथ एट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करता है, तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, दिस ग्लूकोज व्हेन इट विल रिएक्ट व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद यीस्ट, सो देन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल मेक इथेनॉल एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस द ग्लूकोज, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ मेंशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस 10 to 15% इथेनॉल। अब जो ये फर्मेंटेशन का बेसिकली जो हमारे पास ये प्रोसेस है, ये क्या करता है, 10 से 15% इथेनॉल को बनाता है। द यीस्ट इज़ किल्ड बियॉन्ड दिस कंसनट्रेशन। और जो यीस्ट है, बिकॉज इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में इथेनॉल हमारे पास 10 to 15% बनता है, तो फिर क्या होता है कि जो ये यीस्ट है ये ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इस कंसनट्रेशन के आगे। मतलब ऑब्वियसली ये जब प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो ये फिर ये यीस्ट क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है। द इथेनॉल इज़ separated from the mixture by a fractional distillation, which gives 96% pure alcohol, also called rectified spirit. Firstly, we will see what is fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस और पार्ट्स। अब बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एक लिक्विड मिक्सचर होता है वो डिफरेंट अपने पार्ट्स में क्या हो जाता है, सेपरेटेड आउट हो जाता है। और किल किसे कहते हैं, डिस्ट्रॉय को कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस थ्रू दी फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक आप हमारे पास एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है। अब एक मिक्सचर होता है, बेसिकली हमने ये प्रीवियस यूनिट नंबर 9 में पढ़ा भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने सेपरेटिंग क्रूड ऑयल के टॉपिक में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में पढ़ा था डिटेल में, कि ऑब्वियसली उधर हमारे पास क्रूड ऑयल मौजूद था। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो कोई भी मिक्सचर है, जैसे हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल को लिए हैं, तो ये क्रूड ऑयल बेसिकली फर्दर क्या होता है, अपने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है, सेपरेटेड आउट हो जाता है। कि जब ये एक सिंपल मिक्सचर को हमने सेपरेट किया तो वो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स और फ्रैक्शंस में आ गया। अब ये जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल अपने डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आ गया। उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पेट्रोल हो, ऑयल हो, गैसोलीन हो, कैरोसिन हो, और डिफरेंट हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी एक मिक्सचर का डिफरेंट अपने पार्ट्स में, फ्रैक्शंस में आ जाना, सेपरेट आउट हो जाना, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। So this is fractional distillation. Now, the ethanol is separated from the mixture by fractional distillation, which gives 96% pure alcohol, also called rectified spirit. अब जो ये इथेनॉल है, इसको ये हमने जो इथेनॉल है हमने मिक्सचर से सेपरेट कर दिया। कैसे सेपरेट किया? थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमने मिक्सचर से इथेनॉल को सेपरेट कर दिया। तो अब हमें क्या मिला इससे? हमें 96% प्योर अल्कोहल मिला, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। जो हमारे पास 96% है प्योर अल्कोहल है,
96% प्योर अल्कोहल है, ठीक है, 96% प्योर अल्कोहल, ये जो 96% प्योर अल्कोहल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। द रिमेनिंग 4% ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी हमने मिक्सचर में से इथेनॉल को तो सेपरेट कर दिया और जिससे हमें क्या मिला, 96% प्योर अल्कोहल मिल गया, जिसको हमने रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला। अब इसमें से बाकी का जो 4% वाटर है हमारे पास, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ कन्वर्टेड इनटू 100% प्योर इथेनॉल बाय यूजिंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज कंसनट्रेटेड H2SO4। अब बाकी का 4% तो वाटर ऑब्वियसली नहीं रिमूव हो सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो फिर हमने क्या किया कि जो रेक्टिफाइड स्पिरिट, अब फर्दर जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 100% प्योर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। कि फर्दर जो हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट जो था, रेक्टिफाइड स्पिरिट वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, 100% प्योर अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो गया, यानी वो बन ही गया, प्योर अल्कोहल ही बन गया वो। और किसके थ्रू बना वो प्योर अल्कोहल, बाय यूजिंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ किया और और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, दिस इज़ कंसनट्रेटेड H2SO4। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है, कंसनट्रेटेड H2SO4। हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास मौजूद है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स वाटर और रिमूव्स इट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर को या तो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, दैट एब्जॉर्ब्स वाटर, क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और सेकेंडली वो वाटर को रिमूव भी कर लेता है, दैट एब्जॉर्ब्स वाटर और रिमूव, और दूसरे सब्सटेंसेस से बेसिकली रिमूव भी कर लेता है, ठीक है। सो बेसिकली एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही क्या है, डिहाइड्रेटिंग एक ऐसा सब्सटेंस है, इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स वाटर, इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स वाटर और रिमूव्स इट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी को अंदर अपने एब्जॉर्ब भी कर लेता है और रिमूव भी कर देता है दूसरे सब्सटेंसेस से। तो इसलिए हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ किया। क्यों यूज़ किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट को, इसलिए यूज़ किया कि जो बाकी का रिमेनिंग हमारे पास, जो बाकी का 4% जो रिमेनिंग हमारे पास पानी बचा है, उसको रिमूव करने के लिए हमने एक इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ किया हमने। और अब इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो है कंसनट्रेटेड H2SO4। द डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज़ कंसनट्रेटेड H2SO4, कि हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी हाई अमाउंट में बेसिकली उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया है, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी हाई अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इस कंसनट्रेटेड H2SO4 ने बाकी का रिमेनिंग 4% वाटर को क्या कर लिया अपने अंदर, बेसिकली यूज़ किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट को, ताकि वाटर को रिमूव कर सकें। मैंने यहाँ ये रिएक्शन भी मेंशन किया है कि ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट था, अब रेक्टिफाइड स्पिरिट तो हमारे पास ऑब्वियसली ये रेक्टिफाइड हमारे पास ये जो स्पिरिट मेंशन है, तो ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, दिस रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारे पास क्या है, दिस इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ प्योर अल्कोहल। ये हमारा क्या है, बेसिकली ये प्योर अल्कोहल है। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ दी प्योर अल्कोहल। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारा प्योर अल्कोहल है, जो कि 96% पता है हमें, ठीक है। कि जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो हमारे ये प्योर अल्कोहल है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, जब क्या किया कि हमने इसमें यूज़ किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन सा यूज़ किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया प्योर 100% इथेनॉल प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया, प्योर 100% इथेनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड। कि ऑब्वियसली हमने क्या किया कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में बेसिकली हमने जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हमारे पास था कंसनट्रेटेड H2SO4 इसको यूज़ किया, तो हमारे पास क्या बन गया, 100% इथेनॉल। दिस मेथड यूजेस रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड लो एनर्जी लेवल्स। और अब जो ये मेथड है ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करता है और लो एनर्जी लेवल्स को यूज़ करता है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, सोर्सेज विच कैन बी रीजनरेटेड और प्रोड्यूस अगेन, यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि बेसिकली जिनको हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी जो ये मेथड है फर्मेंटेशन का, जो ये प्रोसेस है, इसमें ये क्या यूज़ करता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या, कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इस मेथड में क्या यूज़ होता है, बेसिकली दिस मेथड यूजेज ऑल्सो, ये क्या यूज़ करता है, लो एनर्जी लेवल्स को यूज़ करता है। ये मेथड क्या यूज़ करता है, लो एनर्जी लेवल्स को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है, लो एनर्जी लेवल्स को यूज़ करता है। लो एनर्जी लेवल का क्या मतलब होता है, लो टेम्परेचर। कि आपके पास ये मेथड एक तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करता है और कौन सा और किसको यूज़ करता है, लो एनर्जी लेवल, कि इसमें लो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि इसमें बेसिकली आपके पास होता ही लो टेम्परेचर है, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ अल्कोहल से रिलेटेड था और
और मेन आपके पास टॉपिक क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया, दैट इज़ मेकिंग इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। सो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा और ये फुल आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। सो साइड बाय साइड आप इसको लर्न कीजिएगा, समझिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। सो वी हैव डन टिल हियर, एज वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द एसएलओस। जो हमारे पास एसएलओस थे हमने इनको भी रीड कर लिए हैं, और सेकेंडली हमने फर्स्ट मेथड तक यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ मेकिंग इथेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मेथड एंड वी विल ऑल्सो डू दिस कंपैरिजन एंड द नेक्स्ट फॉरवर्ड पेजेस। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।